according to the requirement, whatever we are producing and whatever we want to sell in the market, it's all depends on that what we are actually offering for the sake of consumption. Product that might be tangible or that might be intangible, यानी physical भी हो सकती है, services भी हो सकती हैं. All that matters is how we are presenting our product in the market in front of our target customers. Target customers are those who are actually filtered, and those who having the potential for buying our product. Not everyone is able to buy everything in the market. For example, pen and stationery is not produced and is not be consumed by the farmers or for the, and the people who are actually related to mechanical or technical side. So we can say that the people who are from the education side or who are students and who are actually literate are having the more potential to buy stationery items, whereas the agricultural products, pesticides and other products which are used in the farms and in the agricultural business, so the farmers are having the potential customers for those products. So we have to filter our target audience first, and then we have to produce the product as per their requirement, according to their needs, wants and demands. So product is something which we offer and represent to our potential customers in order for the consumption. And with the help of that product consumption, we are able to earn money, we are able to earn profit, and we are able to modify those products for their continuous development, growth, and profitability. Similarly, price is something through which we are able to sell our product. We can fulfill the exchange process by providing them the price of that product, the value of that product. They buy that product and give us money, which is the physical phenomena of exchange, which is the physical phenomena of a transformation of marketing process. Price, you have to tell your customers that what is the list price, what are the discounts they are offering, what are the credit terms and policies. For example, if you go for buying a motorcycle on installment basis, so you need to have a different schedule of payments. But you go for buying anything on the cash, इट मे बी वेरीज, ये चेंज हो जाता है. जब आप कैश में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो शायद उस पर आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन जब आप कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो उसकी क्रेडिट टर्म्स एंड पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं. सिमिलरली, जब आप एक टेट्रा पैक मिल्क लेते हैं तो उसका प्राइस डिफरेंट होता है, जब आप उसको कार्टन में लेते हैं तो आप उसका प्राइस डिफरेंट होता है. तो वॉट एवर यू आर ऑफरिंग इन द मार्केट, you have to give the whole detail and classification of the product. किस किस साइज में अवेलेबल है, किस किस पैकेजिंग में, वैरायटी में अवेलेबल है और किस किस प्राइस में अवेलेबल है, ये आपको सब बताना पड़ता है अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को. प्रमोशन इज द वे यू आर एबल टू प्रमोट योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, वेदर एडवर्टाइजिंग, बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, टेली मार्केटिंग, वो जो भी तरीक़ेकार आप यूज़ करते हैं, इट ऑल नोन एज टूल्स ऑफ मार्केटिंग थ्रू विच यू आर एबल टू ट्रांसफॉर्म और कन्वे योर आइडिया टू योर प्रॉस्पेक्ट और पोटेंशियल कस्टमर्स. और उसका तरीका कुछ भी हो सकता है. आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं जो आप रोज़ाना की बेसिस पर कंज्यूम करते हैं. द वे यू प्रमोट योर प्रोडक्ट इज इंटायरली डिफरेंट देन एनी इंसाइक्लोपीडिया और एनी प्रोडक्ट विच इज़ एजुकेशनली रिलेटेड और विच इज़ फार्मास्यूटिकल की जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे केटनॉर्मिन है या हेलिजोल है या ब्लोकियम है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स का आपको एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं मिलता. Why is this so? Because it depends upon the way we represent our product in the market, the way of the consumption of the product. So it all depends. इसी तरह प्लेस इज समथिंग थ्रू विच यू आर एबल टू मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल टू द मार्केट. यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हैव यू एवर गो फॉर 4 P's of marketing, तो you can say that yes, I know 4 P's of marketing, that is product, place, price and promotion. And place is something through which you are able to make your product available to the market, available to the consumer. For example, agricultural good or agricultural product, and the potential customers of those agricultural product are the farmers. तो farmers तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना और उसकी अवेलेबिलिटी करना बहरहाल आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप बासानी चूज कर सकते हैं. लेकिन सिमिलरली, इफ यू आर ऑफरिंग एनी प्रोडक्ट विच इज फॉर the people who have a different scenario and different set of preferences and different set of lifestyle, उस प्रोडक्ट को आप लोगों तक जिस तरह से पहुंचाएंगे, इट इज समथिंग विच यू चूज फ्रॉम द टूल्स यू हैव अवेलेबल. सो सिमिलरली इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से प्लेस करना होता है.
After that we have next slide, and this is एक्चुअली देयर इज सम टेक्निकल इशू विद माय लैपटॉप एज वेल, तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई विल कोप अप विद दैट. दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड एंड इट इज एक्चुअली गिविंग एन insight of the uh, the whole process of marketing. If someone asks from you what is the whole process of marketing, so you can say that the whole process of marketing is classified into 5 steps. ये 5 स्टेप्स हैं जिसके अंदर टोटल प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हम कैप्चर कर लेते हैं, या जिसको हम कहेंगे कि टोटल प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इसके अंदर मुकम्मल तौर पर आ जाता है. तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग के इस हम 5 स्टेप्स में कवर कर लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड जो है वो इन 5 स्टेप्स की है, लेकिन ये पांचों स्टेप्स उस स्लाइड के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में है, जिसमें आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो 5 स्टेप्स हैं इनमें अंडरस्टैंडिंग पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स. ये क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं. देखें, ये हम स्लाइड में इस वक्त शेयर कर रहा हूँ जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी. द वेरी फर्स्ट step is understanding the marketplace and customer needs and wants. It means that first of all, when you go for marketing your product, when you go for representing your product in the market, the very first thing is to understand the marketplace and customer needs and wants. What is the marketplace? How you will going to what is the needs and wants of the customer living in this market. For example, आपको ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में किन किन चीज़ों की कंजम्पशन होती है और कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में पोटेंशियल रखती हैं. फॉर एग्जांपल चाय है, फॉर एग्जांपल चीनी है, फॉर एग्जांपल पत्ती है, फॉर एग्जांपल आटा है, फॉर एग्जांपल राइस है, फॉर एग्जांपल शैम्पूज हैं, फॉर एग्जांपल टेट्रा पैक मिल्क है. तो यू गेट टू नो दैट हाउ दिस मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग. इस मार्केट में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कंजम्पशन मौजूद है और लोग कौन कौन सी प्रोडक्ट कब कब खरीदना पसंद करते हैं, क्यों खरीदते हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, लाइफ स्टाइल की वजह से खरीदते हैं या उनकी ज़रूरत बन चुकी है वो प्रोडक्ट, वो किस तरह से उस प्रोडक्ट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं. तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर. ये हमने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था. देखें कि ये करने के लिए हमें 2 काम करने पड़ेंगे. The very first thing, we have to research. We need to identify the requirements by researching, by getting close to the customers in the marketplace. Let them know about their hobbies, their interests, their consumption pattern, their preferences of buying, their social status. उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनका लिविंग स्टाइल हम मालूम करते हैं, उनका फैमिली स्टेटस मालूम करते हैं, उनका फैमिली साइज़ मालूम करते हैं, देखते हैं कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग अनमैरिड हैं, कितने लोग जो हैं वो क्या फैमिली साइज़ घर में रखते हैं, 5 हैं, 2 हैं, कहाँ रहते हैं, किन इलाकों में रहते हैं, उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, वो अपनी इनकम का कौन सा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करते हैं, लाइफ स्टाइल पे खर्च करते हैं, इंटरटेनमेंट पे खर्च करते हैं, लेजर एक्टिविटीज़ में खर्च करते हैं. ये सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमें उनसे पूछने की ज़रूरत है. उसके बाद हम ये भी मालूम करते हैं, तो पहला स्टेप हो गया रिसर्च का. दूसरी चीज़ ये कि हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करते हैं जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में भेजते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भेजते हैं और ये पूछते हैं कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स किन औकात में सबसे ज़्यादा सेल होती हैं. तो इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए जो ऑडियंस आती है, जो कस्टमर्स आते हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, वो फीमेल है, मेल हैं, वो मैरिड होते हैं, सिंगल होते हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, उनका हाउस होल्ड इनकम होती है, वो किस तरह से इन चीज़ों को ख़रीदते हैं. क्या वो ऐसा है कि अगर हेड एंड शोल्डर नहीं है तो क्या पैंटीन ले लेते हैं या सनसिल्क पे चले जाते हैं. तो हमें उनके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेनी ताकि अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट्स हम प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें. उसके बाद वेरी क्विकली वी विल गो फॉर डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. Once we get to know that what are the needs and requirements of the customer, we go for developing a strategy which is actually customer driven. Customer driven मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी जो कस्टमर्स को मोटिवेट करती है, परसुएट करती है और उनको ड्राइव करती है आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए.
हम ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वी गो फॉर टारगेटिंग दोज कस्टमर्स। हम उन कस्टमर्स को फिल्टर कर लेते हैं, टारगेट करते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि वो इस प्रोडक्ट को खरीदने का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। For example, if you are developing any shirt which is a plain a formal shirt, तो यकीनी तौर पे यू नो दैट द फॉर्मल शर्ट जो लोग पहनते हैं या जो अच्छी फॉर्मल शर्ट ड्रेस शर्ट पहनना चाहते हैं, यकीनी तौर पे वो लोग हैं जो ऑफिस गोइंग है, ऑफिस में जॉब करते हैं या जिनका अपना बिजनेस है। और उसमें भी कैटेगरीज हैं, कुछ लोग ऑफिस में बहुत हाई लेवल जॉब करते हैं, कुछ लोग लो लेवल पे हैं, कुछ मीडियोकर्स हैं, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है, किसी का स्मॉल एंटरप्राइजेस है, डॉक्टर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इसी तरीके से लॉयर्स हैं, दे यूज टू वियर ड्रेस शर्ट्स। तो द थिंग इज, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप उनमें से एक प्रोडक्ट बनाकर तमाम लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मार्केटर टू डेवलप वन शर्ट एंड टू सेटिस्फाई द होल acumen of people having wearing those dress shirts। नहीं, जूनियर लेवल क्लर्क्स भी हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल लोग भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, उसी डॉक्टर की फार्मेसी में काम करने वाला भी वाइट और ड्रेस शर्ट पहनता है। तो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल इन टारगेटिंग एंड सेगमेंटिंग दोज ऑडियंसेस हु कंटेन द मोस्ट पोटेंशियल फॉर बाइंग योर प्रोडक्ट। तो इन मार्केटिंग वी गो फॉर टारगेटिंग एंड सेगमेंटिंग द होल टोटल ऑडियंस, और उसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स यूज करते हैं। और वो पैरामीटर्स ये हैं कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स का डेमोग्राफिक्स क्या है, कस्टमर्स की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, किस एज ब्रैकेट में है, किस सोशल स्टेटस पे है, मॉडरेट है, हायर अपर क्लास है, इलीट क्लास है, या लोअर मिडिल क्लास है, व्हाट इज द क्लास, हाउ मेनी पीपल लिविंग इन हिज फैमिली, ही इज मैरिड और ही इज अनमैरिड, उसकी जो है वो साइकोग्राफी क्या है, वो क्यों खरीदता है ये प्रोडक्ट, व्हाट इज द रीजन। या तो उसकी अल्टीमेट नेसेसिटी है कि लेकिन वो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है और वो अपनी फैमिली को हाइजीनिक फूड या हाइजीनिक इंग्रेडिएंट्स देना चाहता है, तो फिर वो लोग अलहदा हो गए। बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन तमाम लोगों का गाड़ी खरीदने का मकसद एक नहीं होता। गाड़ी हम अफोर्डेबिलिटी की बेसिस पर खरीदते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है एंड दे सेड दैट वी वांट अ कंफर्टेबल एंड अ लग्जरी ड्राइव। तो गाड़ी का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि उसको हम ट्रैवलिंग करें या उससे एक जगह और जाएं, वो पीछे रह गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हाँ, लेकिन इसमें स्टाइल भी होना चाहिए, इसमें कंफर्ट भी होना चाहिए, इसमें लग्जरी भी होना चाहिए, और इसमें वो तमाम फीचर्स और बेनिफिट्स होने चाहिए जो हमारे सोशल क्लास को सेटिस्फाई कर सके। For instance, if people is from elite class, why go for buying Suzuki Alto? Why don't he go for buying a car which is up to the mark of his social status? So there are certain things, and according to their requirement, according to their lifestyle, according to their psychography, according to their demographics, and according to their geographic locations, we segmentize those customers and make sub segments of those customers। हम सब सेगमेंट बना लेते हैं कि भाई ये कौन लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट के सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, ये यहाँ पे रहते हैं, ये इस तरीके से खरीदते हैं, इनके घर में इतने लोग रहते हैं, ये इस एज ब्रैकेट में है और ये सोशल स्टेटस से बिलोंग करते हैं। तो फिर हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करती है, वो तमाम ऑडियंस को टारगेट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में इतने बहुत सारी आबादी है, कराची में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, तो हम एक प्रोडक्ट उन 2.5 करोड़ लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। We make the subsets of the total audience and then we get to know their requirement and produce the product according to their requirement। जब हम ये कर लेते हैं तो उसके बाद हम उन लोगों को परसुएट करने के लिए, फोकस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाते हैं। और वो वैल्यू प्रोपोजिशन डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, डिफरेंशिएशन पर एंड पोजीशनिंग पर। आप देखें, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, सर्फ एक्सेल है, ब्राइट है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी सर्टेन पोजीशनिंग हुई हुई है। एक प्रोडक्ट की पोजीशनिंग इस तरह से हुई हुई है कि लोग ये समझते हैं और ये जानते हैं कि दिस इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट, उसके पास हाइजीनिक जो है इंग्रेडिएंट्स हैं और इसकी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है और इसीलिए ये एक्सपेंसिव है। ये एक पोजीशनिंग है। दूसरी पोजीशनिंग ये है कि दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन इन द मार्केट, इट इज़ कंपैरेटिवली चीप प्रोडक्ट, इसकी परफॉर्मेंस बस नॉर्मल है और ये इजीली अवेलेबल है। एक ये पोजीशनिंग हुई हुई है।
एक ये पोजीशनिंग है कि जी ये जो सर्फ एक्सेल है, ये जो सर्फ है, ये बस 100 काम करता है, लेकिन ये सस्ता बहुत है, लिहाजा तमाम लोग इसको खरीद सकते हैं. तो देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड देर आर सर्टेन पोजीशनिंग ऑफ दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू कैप्चर योर टारगेट ऑडियंस. यहाँ पे जो सेकंड आपको फ्लो चार्ट का सेकंड बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें लिखा है डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन स्ट्रेटेजी, इसमें हम दो काम करते हैं, टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन एंड डिसाइडिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन. डिसाइडिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन मीन्स कि जब हम ये जान लेते हैं कि दीज आर अवर पोटेंशियल कस्टमर्स, so we convey our potential customers, we communicate our potential customers with the help of a positioning statement, and that positioning statement is actually something which positioned the product in the mind of the customer so that they are able to differentiate. For example, there are certain people using certain shampoos, लेकिन जो head and shoulder यूज करता है उसके दिमाग में head and shoulder की certain positioning हुई हुई है with respect to its competitor. वो आपको बता देगा, वो आपको कह देगा, समझा देगा कि what head and shoulder is. Head and shoulder is an anti dandruff shampoo. This is what we positioned head and shoulder in the market. Similarly, we can say that this shampoo is a stylish shampoo because it gives a stylish look to your hairs. But ultimately, shampoo is a core product which is used to wash the hair only. But we transform this product into a unique identity and positioned in the mind of the customers differently. Toyota Corolla अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखती है, डिफरेंट आइडेंटिटी रखती है देन होंडा. एंड होंडा एंड करोला बोथ आर कार्स but having differentiation effect and having positioning differently in the mind of the potential customers. So this is something positioning, it is very important. This is something which we communicate with the help of the fourth P which is promotion. यानी कि आप पोजीशनिंग लोगों तक कम्युनिकेट कैसे करेंगे. हमें किसी टूल की जरूरत है ना, हम मोबाइल पे फोन करके बताएंगे, एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, बिल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे. वी मस्ट रिक्वायर समथिंग टू कम्युनिकेट देम इफेक्टिवली. फॉर एग्जाम्पल nowadays we are having a marketing campaign on our social media channels like Facebook, like WhatsApp, like Instagram, like Twitter. So we need some platform, we need some tools to communicate our positioning to the customer so that they visualize us, so that they recognize us, so that they identify us, that this is a product having certain attributes and certain benefits to the customers. So this is very important. When you identify the potential customer and you set and make decision that we will going to position our product in such a way and we will going to communicate our value propositioning in such a way, then we go for developing a marketing plan. उसके बाद हम marketing plan बनाते हैं कि now whatever we think, जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है, नाउ वी नीड टू मेक इट और इम्प्लीमेंट इट प्रैक्टिकली. हमने सोचा ये लोग हैं, यहाँ रहते हैं, इनकी एज ब्रैकेट है, इनका ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इनके ये मार्केट में डिमांड है, ये चीज़ें खरीदना चाहते हैं. इनको परसुएट करने के लिए हमने एक पोजिशनिंग स्टेटमेंट बनाई. नाउ वी नीड टू कम्युनिकेट दिस पोजिशनिंग स्टेटमेंट टू द कस्टमर्स, नॉट ऑल बट दोज टारगेट कस्टमर्स. उसके लिए हम एक मार्केटिंग प्लान बनाते हैं और उस मार्केटिंग प्लान में हम ये चार चीजें लिखते हैं. द वेरी फर्स्ट इज प्रोडक्ट, द सेकंड इज प्राइस, द थर्ड इज प्लेस एंड द फोर्थ इज प्लेसमेंट, प्रमोशन. ये चार चीजें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 टूल्स ऑफ मार्केटिंग कहलाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लान. जिस पोटेंशियल सेगमेंट को हमने आइडेंटिफाई किया, वी नेवर कम्युनिकेट टू देम, नाउ वी वांट टू कम्युनिकेट टू देम. So how we're going to communicate? We communicate with the help of a promotional tool. We use some platforms to communicate. हमने टीवी का एक प्लेटफॉर्म यूज किया, एडवर्टाइजमेंट बनाया, लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट में हमने सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया, इंट्रोड्यूस किया कस्टमर्स को. उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उस प्रोडक्ट की तमाम चीजें बतानी पड़ेंगी, उसका डिजाइन, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी गारंटी, वारंटी, उसकी कलर स्कीम, उसका सिंबल, उसका लोगो, उसकी पैकेजिंग, एवरीथिंग. आप देखें, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो आपकी प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पे जो है वो रेडी होती है. ऐसा नहीं होता कि कहीं प्रिंट नहीं हुआ हुआ, कहीं स्टैम्प नहीं लगी हुई, कहीं एड्रेस नहीं लिखा हुआ, कहीं नाम नहीं लिखा हुआ, कहीं लोगो नहीं हुआ. नो, ऐसा नहीं होता. तमाम चीजें उस प्रोडक्ट के ऊपर रेडी होती हैं और वो मुकम्मल तौर पर तैयार होती है आप तक और आपके कंज्यूम करने के लिए. इसीलिए हम प्रोडक्ट में तमाम चीजें मेंशन कर देते हैं. उसके बाद हम ये भी बता देते हैं उसी प्रोडक्ट में, उस एड में, कि इट इज एक्सपेंसिव और इट इज मॉडरेट और इट इज अफोर्डेबल.
और हम उसमें प्राइस बताते हैं कि इट इज़ 100 ग्राम इतने का है, 200 ग्राम इतने का है, 500 इतने का है, 850 इतने का है और 1000 ग्राम इतने का है। यानी कि हम ये सारी चीज़ें अपने टारगेट कस्टमर्स को पहले से बता देना चाहते हैं कि जब वो खरीदने जाए तो उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। सिमिलरली वी गो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेसमेंट इस एक ही चीज़ है, यानी हम लोगों को बताएंगे कि वॉट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर यू इज ईजिली अवेलेबल फॉर you, and you can get and go and get that product from that outlet or from that outlet or from that outlet. For example, if we are producing some ice cream for the potential customers, so हम उन्हें बताएंगे कि आइसक्रीम जो है वो आपके करीबी स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, या हम ये बताएंगे कि जुनैद जमशेद के आउटलेट अब तारिक रोड, क्लिफ्टन, पीसीएचएस में और हर जगह पर है, या हम ये बताएंगे कि ये गाड़ियों का शोरूम गुलबर्ग पे है और इस इलाके में है और डिफेंस में है और कंटोनमेंट पे है। तो ये हम उनको कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे, ताकि हम इन कस्टमर्स को ज़्यादा आसानी प्रोवाइड कर सकें अपनी प्रोडक्ट खरीदने में। तभी कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो देंगे होंगे, वरना अदरवाइज दे विल नॉट गो फॉर परचेजिंग अवर प्रोडक्ट, दे गो फॉर कंपेटिटर्स, दे गो फॉर कंपेटिटिंग प्रोडक्ट्स। वो हमारी प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा जब तक उसको हर तरह की आसानी नहीं होगी। उसे हम बताएंगे कि दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली फॉर यू, वी डेवलप दिस प्रोडक्ट फॉर यू। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोशन। जब हम ये सारी चीज़ें रेडी कर लेंगे, देन वी गो फॉर प्रोमोटिंग अवर प्रोडक्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, on televisions, on newspapers, on any broadcasting YouTube channels. It's all depends upon what we are offering. For example, अगर आप देखें कि आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स और सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जाती है, इसलिए कि वो हम डेली जो है वो यूज़ करते हैं और रेगुलर बेसिस पर उनकी कंजम्पशन करते हैं। तो उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे टेट्रा पैक मिल्क है, टी है, मिनरल वाटर है, पत्ती है, चीनी है, चाय है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम, मक्खन है, दूध है, डबल रोटी है, अंडे हैं। तो इनकी कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि डेली यूसेज की चीज़ें, तो इनकी मार्केटिंग भी सबसे ज़्यादा की जाती है, बताना भी चाहता है। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो मार्केटिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है जिसको कहते हैं बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट कस्टमर रॉयल्टी एंड डिलाइट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी हमारी प्रोडक्ट को यूज़ करे और कंज्यूम करे, वो हमारी प्रोडक्ट से पोटेंशियली सेटिस्फाइड हो और फिर वो अपने कंपेटिटर की तरफ स्विच ना करे, कोई और प्रोडक्ट ना खरीदे। तो वी डिवेलप ट्रस्ट विद देम, वी डिवेलप एक्सचेंज पॉलिसी विद देम। कभी कोई चीज़ ख़राब निकल जाए तो आप चेंज करवा लें। और हम इतना ट्रस्ट और डेवलप करते हैं, इतनी रिलेशनशिप बनाते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट पे भी ये बता देते हैं कि हमारा ये एड्रेस है, ये टेलीफोन नंबर है और ये क्वालिटी की स्टैंप है। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ मौजूद हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच वी डेवलप विद द हेल्प ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड डिलीवर वॉट एवर वी प्रोमिस्ड विद द कस्टमर्स। आप देखें, लोगों की एक राय है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को लेके, और लोग कहते हैं कि जी ये जो टेट्रा पैक मिल्क है इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, या लोग कहते हैं कि डॉलेंस है या हायर है तो उसकी कारकर्दगी या ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दिस प्रोडक्ट हैव गुड आफ्टर सेल सर्विसेज। कुछ लोग कहते हैं इनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन सपोर्ट अच्छी नहीं है। तो देयर आर थिंग्स विच एक्चुअली बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। जब आप ये सब काम कर लेते हैं तो सबसे अहम चीज़ ये है कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। जब हम अपनी प्रोडक्ट इन तमाम चीज़ों के साथ अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को पहुंचा देते हैं तो बदले में हमें पोटेंशियल कस्टमर से रिपीटेड परचेज की ज़रूरत होती है, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपनी कंपनी को सस्टेनेबल कर सकें और स्टेबल कर सकें। उसके लिए जब हम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो सेटिस्फाइड कस्टमर्स, पोटेंशियली सेटिस्फाइड कस्टमर्स टर्न हो जाते हैं लॉयल कस्टमर्स में, यानी फिर वो कोई और प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हमारी प्रोडक्ट खरीदते हैं। और जब वो लॉयल कस्टमर्स में हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं मार्केट में कि हमारे मार्केट में इतने बहुत सारे लॉयल कस्टमर्स मौजूद हैं। ये वो लॉयल कस्टमर्स हैं जो हमारे असासा हैं, हमारे एसेट हैं। इनके इनकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारी मार्केट में ये इक्विटी मौजूद है, ये एसेट मौजूद है। आपने सुना होगा पूरा पूरा ब्रांड जो है वो बिक जाता है, पूरा पूरा नाम बिक जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इक्विटी मार्केट में मौजूद होती है, लोग उसको खरीद लेते हैं उसकी रेपुटेशन की वजह से। उनको पता है कि अगर हम मैकडोनल्ड बेचेंगे तो सिर्फ मैकडोनल्ड नाम नहीं बिकेगा या सिर्फ वो आउटलेट नहीं बिकेगा, मैकडोनल्ड के साथ जो करोड़ों लोग मैकडोनल्ड के लॉयल कस्टमर्स हैं वो भी बिक जाएंगे। तो दिस इज कस्टमर इक्विटी एंड दिस इज समथिंग विच इज द most prominent objective of marketing, that we want to earn profit for a longer period of time. We want to increase the share of the market and share of the customer so that we can survive for 10, 50 and 100 years.
तो जो जॉइंट कंपनीज हैं उनका यही प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऐसी चीज़ सेटिस्फाइड कस्टमर्स को बनाकर देती हैं जिनकी बेसिस पर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में रहते हैं और मार्केट के अंदर सुपरमेसी और मार्केट शेयर को इंजॉय करते हैं। आर यू ऑल विथ मी? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और आप लोगों को समझ आ रहा है? Yes, sir. थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स। देखें, मैंने आपसे यही अर्ज किया अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि मार्केटिंग प्लान है और मार्केटिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं व्हाट यू आर ऑफरिंग इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, तकाफुल ऑफर कर रहे हैं, मेडिकल सप्लाईज ऑफर कर रहे हैं, तो एवरी प्रोडक्ट वॉट एवर यू आर ऑफरिंग इज हैविंग सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ कस्टमर्स ना। तो दे वी विल हैव टू फॉलो द सर्टेन क्राइटेरिया टू कैप्चर देम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर प्रोडक्ट एक ही तरीके से मार्केट में ऑफर करें और चाहें कि आप कैप्चर कर सकें लोगों को या कस्टमर्स को। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ कैप्चरिंग द कस्टमर्स। जी, so I'm talking कि whatever we are actually communicating or whatever we are presenting in the market, it all depends that for whom we are presenting and what is the product। जैसे आप लोग खुद फार्मास्यूटिकल से ताल्लुक रखते हैं तो आप जानते हैं कि the marketing of pharmaceutical is entirely different from FMCG goods। तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग का जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है क्योंकि उसका टारगेट कस्टमर ही डिफरेंट है। हम डायरेक्ट ही उसकी कंजम्पशन नहीं करते बल्कि डॉक्टर से उसको प्रिस्क्राइब करवाते हैं, तो क्राइटेरिया उसका कंप्लीटली चेंज हो गया। फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जो है वो खुद कस्टमर चूज करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लाइक डिसलाइक एंड साइकोलॉजी, बट द मेडिसिन आर नॉट चूज ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी। मेडिसिन आर एक्चुअली नेसेसिटी। आप एंटरटेनमेंट तो छोड़ सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, कंजम्पशन तो उसकी कम कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन इज समथिंग जिसकी कंजम्पशन कम नहीं हो सकती। तो एट एनी कॉस्ट यू नीड टू बाय दोज मेडिसिन। So there is certain difference in the product, difference in the criteria, different in the customer, different in the tools to promote those product। आप यकीनी तौर पे टेनॉर्बिन का एड सोशल मीडिया पे नहीं देते, इसलिए नहीं देते क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब वो नॉर्मल बेसिस पर कंज्यूम की जाए और ऐसी चीज हो जो लोग बगैर प्रिस्क्रिप्शन के खरीदें। जैसे पैरासिटामोल है तो आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। तो इसी तरीके से देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स और उनका सर्टेन क्राइटेरिया है। वेरी क्विकली स्टूडेंट्स, एक्चुअली आज मुझे डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करवानी थी लेकिन आज काफ़ी टाइम हमारा ज़ाया हो गया जिसकी वजह से हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करवा सके। लेकिन मैं कुछ चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग की आज बता देना चाहता हूँ और आपको ये स्लाइड दे दूंगा ताकि आप इसको रिपीट कर सकें और पढ़ सकें। आई नो एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना हुआ भी होगा और वो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक आप कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी वे है मार्केटिंग का या न्यू वे है जिसमें वी यूज टेक्नोलॉजी टू अचीव अवर मार्केटिंग एंड बिजनेस गोल्स। देर आर सर्टेन टेक्नोलॉजी और सर्टेन टेक्नोलॉजीज के सर्टेन जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में उसको यूज करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का भी यही मतलब है कि वी यूज सर्टेन एप्लीकेशंस एंड सर्टेन प्लेटफॉर्म्स एंड सर्टेन मीडिया टू कम्युनिकेट वॉट एवर वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू एनी वन एल्स। और उसमें दो तरह की मार्केटिंग है, एक मार्केटिंग कहलाती है आउटबाउंड मार्केटिंग और एक मार्केटिंग कहलाती है इनबाउंड मार्केटिंग। आप देखें कि हम आउटबाउंड मार्केटिंग में ये करते हैं कि वी नीड टू कम्युनिकेट आवर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स एंड वी वांट टू मेक आवर प्रोडक्ट अवेयर इन द मार्केट। तो हम अपना मैसेज जो है वो लोगों को आउटबाउंड करते हैं, पहुंचाते हैं लोगों तक। अब उसका तरीकेकार एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है और उसका तरीकेकार जो है वो बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग भी हो सकती है या उसका तरीका न्यूज़पेपर भी हो सकता है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू create awareness of the product that this is the product which is
विच इज वी डेवलप फॉर यू। तो दिस इज आउटबाउंड मार्केटिंग। और हम इसको तेजी से कर सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, वर्ड टू माउथ कॉल कर सकते हैं, लोगों को बैनर के जरिए बता सकते हैं, वीडियो के फॉर्मेट्स को हम बार बार चला सकते हैं, कि जिसके जरिए हम सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को कि जी ये प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है और आपकी लिए आ गई है। और इतनी दफ़ा भी हम उसको चलाना चाहते हैं कि लोग हमारी प्रोडक्ट को पहचान लें और लोग याद करें कि हाँ जी ये का एड तो हमने देखा है, ये तो प्रोडक्ट को मैं जानता हूँ, ये इसके को मैं पहचानता हूँ। तो दिस इज समथिंग विच इज नोन एज outbound marketing. Now inbound marketing is something which is exactly opposite to the outbound marketing. Outbound marketing में हम पुश करते हैं मैसेज को ताकि वो लोगों तक पहुंचे, लोगों में अवेयरनेस हो और लोग उसके बारे में जानना शुरू कर दें। इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर हम इसको कहते हैं रिवर्स मार्केटिंग, यानी हम एक मैसेज, एक कमेंट देते हैं, एक पोस्ट करते हैं और फिर हम चाहते हैं कि उस कंटेंट को हमारे लोग देखें, कस्टमर्स देखें, उसके बारे में तबसरा करें, उसके बारे में डिसीजन लें, उसके बारे में कमेंट्स करें, उसको लाइक करें, उसको डिसलाइक करें, ताकि हमें ये पता चले कि कितने बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो देर आर टू वेज ऑफ मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग एंड इनबाउंड मार्केटिंग, विच वी यूज इन डिजिटल मार्केटिंग। वी यूज सर्टेन advertisement for the customers to make them aware about the product, and in inbound marketing we want to pull our customer to our content। हम Facebook पर, Instagram पे और जो दूसरे सोशल मीडिया मार्केटिंग चैनल्स हैं उस पे अपनी पोस्ट लगाते हैं, अपना कंटेंट लगाते हैं और फिर हम ये चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, उसमें इंगेज हो, कम्युनिकेट करें, ताकि हम डायरेक्टली लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। जब आप एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन पे चलाते हैं तो उसको लोग देखते तो ज़रूर है लेकिन कमेंट नहीं दे पाते उसकी, और वो कमेंट आप तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन इन डिजिटल मार्केटिंग इट इज़ वेरी ईजी टू इंटरेक्ट विद द इंडिविजुअल कस्टमर। मतलब एक ने नीचे कमेंट बोला कि यार मुझे लग तो अच्छी प्रोडक्ट रही है लेकिन आई डोंट नो about the side effect of this product, तो you can communicate with them and you can tell the side effect एट द मोमेंट। उसी वक्त आप बता सकते हैं, उसको आप कन्विंस कर सकते हैं कि देखो इसके ये साइड इफेक्ट है लेकिन वो मिजरेबल नहीं है फॉर द हेल्थ। तो दिस इज समथिंग विच इज इनबाउंड मार्केटिंग। इसमें हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को जानते हैं पहले से और आपके प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है, तो आप उनको ज्यादा बेहतर तरीके से इंडिविजुअली कम्युनिकेट करके परसुएट कर सकते हैं खरीदने के लिए, अपने कस्टमर्स को पुल कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज inbound marketing. Very quickly, in digital marketing there are types of media which are known as digital owned media, paid media and earned media। हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स यूज कर रहे हैं जिसके जरिए हम अपना मैसेज लोगों तक कन्वे कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों को परसुएट कर रहे हैं। तो वो कौन सा मीडिया है और किस तरह से हम वो कर सकते हैं? द वेरी फर्स्ट इज ओन्ड मीडिया। फॉर एग्जाम्पल, आई मेक अ प्रोफाइल ऑन यूट्यूब, आई मेक अ प्रोफाइल ऑन फेसबुक, आई स्टार्टिंग गेटिंग माई प्रोडक्ट अवेयर्ड, और मैंने उसमें अपनी पोस्ट लगाना शुरू कर दी और लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई दिस इज व्हाट आई एम प्रोड्यूसिंग, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट, जो हम खुद क्रिएट करें और खुद ही उसको मैनेज कर लें। दिस इज नोन एज ओन्ड मीडिया। आपने देखा होगा लातादाद यूट्यूब चैनल्स हैं, आपने देखा होगा फेसबुक पे लातादाद लोग जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम कर सकते हैं, ये ओन्ड मीडिया कहलाता है। दूसरा एक और मीडिया है जिसको कहते हैं हम पेड मीडिया। हम फेसबुक पे स्पॉन्सर्ड करते हैं बहुत सारे अपनी पोस्ट को और उसके ऊपर हम उनको पेड करते हैं कि वो हमारे बैनर्स, हमारी वीडियोस को, हमारी विजिबिलिटीज को बढ़ाएं। उसमें हम एक ऐसा मेजरमेंट लगाते हैं कि जी हमारा ये जो पोस्ट है ये 1000 से 5000 लोगों तक पहुंचनी चाहिए, 7 दिनों में पहुंचनी चाहिए। जिन ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए वो शहर के इन इलाकों में रहने चाहिए, जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए उनका एज ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। हम उनको पे करते हैं और वो हमारी विजिबिलिटी को बढ़ा देते हैं ऑडियंस में। फॉर एग्जाम्पल, आपके ओन मीडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो भी लोग देखेंगे जो आपके साथ इंटरकनेक्टेड हैं, आपके ग्रुप में है या आपके फ्रेंड्स हैं। लेकिन ओन मीडिया और लेकिन पेड मीडिया में ऐसा हो सकता है कि आप उनकी विजिबिलिटी बढ़ा दें, दायराकार बढ़ा दें, ज़्यादा लोगों को अपना पोस्ट दिखाएं। इसके और बहुत सारे भी तरीक़ेकार हैं, जैसे कि आप वेबसाइट के ज़रिए इसको प्रमोट कर सकते हैं, आप अपनी पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं, आप जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट बनाकर मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर चला सकते हैं और उनको पे कर सकते हैं ताकि वो आपकी विजिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, जैसे कि क्लिक है। क्लिक का मतलब ये होता है कि आप उसके
अंदर कुछ क्राइटेरिया ऐसा डिफाइन कर देते हैं कि वो ऐड जैसे जैसे उसके ऊपर क्लिक होता जाता है, आप उसके पैसे गूगल को देते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप कमाना शुरू कर देते हैं। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अर्न मीडिया इज फ्री पब्लिसिटी जनरेटेड बाय द कंज्यूमर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड पीपल हु स्पीक अबाउट एंड शेयर कंटेंट रिलेटेड टू योर ब्रांड और प्रोडक्ट। अर्न मीडिया, आपने एक पोस्ट लगाई फेसबुक पर और आपने बताया कि दिस इज समथिंग विच आई एम प्रोमोटिंग, या आपने एक पोस्ट लगाई, आपने एक यूट्यूब पे वीडियो लगाई, आपका फ्रेंड उसके में आपके साथ ऐड था, उसने उस वीडियो को आगे लोगों में अपने ग्रुप में शेयर कर दिया, तो दिस इज अर्न मीडिया। एक चीज आपने अर्न की, यानी कि आपकी विजिबिलिटी को आपके फ्रेंड्स ने मजीद बढ़ा दिया, आपने उसकी विजिबिलिटी को अर्न कर लिया। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मीडिया थ्रू विच वी आर एबल टू इनिशियलाइज अवर प्रोडक्ट। उसके बाद हम इसको बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। Now types of media, and after type of media we have owned media, benefits of owned media and challenges of owned media। दोबारा से हम इसी की हम बात कर रहे हैं कि ओन्ड मीडिया जो हम खुद बनाते हैं और जो खुद मैनेज करते हैं, वो जैसे कंपनी ने अपना ये वेबसाइट बनाई या कंपनी ने अपना फेसबुक पेज बनाया, जुनेद जमशेद ने या यूनिलीवर ने, और उसने अपनी मर्जी के कंटेंट दे सकता है, वो अपनी मर्जी की पैकेजिंग कर सकता है, उसकी अपनी मर्जी का पॉइंट ऑफ सेल डिफाइन कर सकता है और उन लोगों को बता सकता है जो लोग उसके कस्टमर्स या उसके साथ कांटेक्ट में हैं, उनको ये बताने के काबिल है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है इसके? कॉस्ट एफिशिएंसी है, कॉस्ट कम आती है, आपके पास पेज है, आप उसको विदाउट एनी पे आप कर सकते हैं क्योंकि वो आपका अपना पेज है, आपकी कंपनी का पेज है, प्रमोट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, आपने अभी रात को एक ऐड डाल दिया, कल सुबह डाल दिया, फिर उस ऐड को हटा दिया, दूसरा ऐड डाल दिया। क्रिएटिविटी है, जिस तरह से जो चाहें आप उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिस मॉडल को रखना चाहें रख सकते हैं, जिस कलर स्कीम को आप उसमें करना चाहें कर सकते हैं, जितनी देर का आप बनाना चाहें बना सकते हैं। लॉन्गिटिविटी है, यानी एक दफ़ा आपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, वो है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल वो मौजूद है। चैलेंजेस ये हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप अ गुड रेपुटेशन इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ये ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम ये ऐसा कर लेते हैं कि हम रेपुटेशन बना लेते हैं और ट्रस्ट भी इट्स अ वेरी चैलेंजिंग बट वी गो फॉर डेवलपिंग अ ट्रस्ट ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स वे ऑलरेडी हमारा टाइम हो गया, इट्स ऑलरेडी 4:12। आई एम रियली सॉरी कि आज हम ज़्यादा इसको मैनेज नहीं कर सके, वरना मुझे आज ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग आज आपको पूरा करवाना था। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम डिजिटल मार्केटिंग को और इसके पूरे कंटेंट को कवर कर लेंगे। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना है। तो ये प्रेजेंटेशन तो आज आपको मिल जाएगी क्योंकि इसके अंदर मैंने डिजिटल मार्केटिंग की तमाम चीज़ें कोशिश की हैं कि मैं इसमें कर सकूं, और इसकी स्लाइड के अंदर तमाम चीज़ें मैंने लिख भी दी हैं, तो मैं क्लास में भी डिफ़ाइन कर दूंगा और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरी प्रेजेंटेशन मैं कवर करवा दूं और कुछ जो हैं एप्लीकेशंस के बारे में भी आपको बता दूं। इंशाल्लाह ताला वी विल गोइंग टू हैव अ क्लास नेक्स्ट वीक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।